Hi, my dear students, and it is the time to study the Cartesian plane or Cartesian coordinates or rectangular plane or rectangular coordinates. It's our lecture number 2 of class 9's coordinate geometry. Here we have considered xo, x dash and yo, y dash. These two are mutually perpendicular lines, okay, and these two lines are supposed to intersect at point O. This point of intersection of those two perpendicular lines is known as origin, okay. The horizontal line here xo, x dash is called x-axis, while the vertical line yo, y dash is called y-axis. In the Cartesian plane or in the Cartesian coordinates, the position of any point P, you can take here a point P, we shall have to locate the position of this point. To find the position of point P is determined by knowing the distances from the perpendicular lines passing through a point O, this one. यहां से हम इस पॉइंट का ये दोनों एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर होगा, जो डिस्टेंस इस पॉइंट का इन्होंने एक्स एक्सिस में कितना चला और इन्होंने वाई एक्सिस में कितना चला, ये दोनों डिस्टेंसेस से हम ये पता करेंगे कि इनका पोजीशन क्या होता है. आइए देखते हैं. अब इस फिगर में हमने क्या किया है कि P से we have drawn a perpendicular PM to on XO x dash line and NP is a perpendicular drawn to the YO y dash lines. This distance along the x-axis gives the x coordinate for this point. If this should be treated as x, if we assume the distance covered along x-axis as x, the x coordinate should be x and the y coordinate, the distance covered along y-axis by this point is called y coordinate. यानी कि OM इक्वल टू NP है, तो ये दोनों डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट देगा एंड MP इक्वल टू ON है, ये डिस्टेंस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा. क्लियर? Here the x coordinate is known as the abscissa, while the y coordinate will be known as the ordinate. Abscissa and ordinate. A point must have two coordinates. The coordinates are individually known as abscissa and ordinate as well. First coordinate is x abscissa, second one coordinate is ordinate. Okay. Hence, the x distance covered along x-axis is abscissa and the distance covered along y-axis is known as ordinate. These abscissa and ordinate collectively known as the coordinates of a point. Okay. अब आइए quadrant समझते हैं कि what are quadrants. Here the xo, x dash and yo, y dash are two mutually perpendicular lines. They are intersecting each other at point O. The point O is known as origin. We have studied so far, and these two perpendicular lines divides the whole plane into four equal zones, four equal parts. Each of the part, that is 1/4 of the plane, पूरे प्लेन को चार हिस्से में आप बांट दो, हर एक पार्ट या 1/4 पार्ट पूरे प्लेन का क्वाड्रेंट कहा जाता है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नाम देंगे इसको.
first quadrant, second quadrant, third quadrant and this one is fourth quadrant. अब हम यहाँ पे इसका साइन स्कीम को जानेंगे कि इसके साइंस के कोऑर्डिनेट्स जो किस कोई पॉइंट होगा प्लेन पे तो उसके साइंस क्या होंगे। सपोज करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका साइन होगा कि OX आपका राइट हैंड साइड। सपोज करो मैं जैसे खड़ा हुआ हूं, मेरा राइट हैंड या आप ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो तो आपका राइट हैंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आपका लेफ्ट हैंड नेगेटिव एक्सिस है, अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव है और डाउनवर्ड वाई एक्सिस को हम नेगेटिव मानते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का कोई मतलब ये डिस्टेंस मेजर करेंगे एक्स पॉजिटिव और वाई अपवर्ड पॉजिटिव, तो दिस साइन ऑफ दिस इज पॉजिटिव, एब्सिसा भी पॉजिटिव और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, सपोज करो इट बी क्यू, तो एक्स एक्सिस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेजर करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो एब्सिसा यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाना होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट आएंगे नेगेटिव होगा और वाई भी डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में एक्स आएंगे पॉजिटिव, वाई आएंगे नेगेटिव। ये साइंस होंगे हर एक पॉइंट का प्लेन पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसका साइन ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे। इसको हम क्लियरली लिख करके चार्ट बना के आपको दिखा देते हैं। ओके, आपके लिए चार्ट रेडी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन, वाई कोऑर्डिनेट का साइन और पॉइंट का जो साइन होगा उसको आप इस चार्ट की मदद से भी कॉपी कर सकते हो, याद कर सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट वे यही है कि आप अपने राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड डाउनवर्ड को अगर याद करो तो ज़्यादा बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, now let us take a question here. This concept, the coordinate geometry, has 6 marks for you in exams and 6 marks के क्वेश्चन होंगे। बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है लोकेशन ऑफ पॉइंट को, but these studies will help us a lot in the field of linear equation in two variables also when we trace graphs. Okay, and now in this question the find abscissa, ordinate and coordinate of point P. Here we know that the distance covered by a point along the x-axis is known as abscissa. That means here 6 will be abscissa. मैं इसका आंसर यहीं पे लिख देता हूं 6 and this 6 must be positive since we are going towards the right side, towards positive x-axis, and the ordinate must be डाउनवर्ड जा रहा है, वाई एक्सिस डाउनवर्ड में नेगेटिव होता है, दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो हमारा दिस शुड बी माइनस ऑफ 3. ओके, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स मस्ट बी 6, -3. इसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं 6, -3. ओके, here first question says that find the coordinates of the vertices of the square ABCD. इस स्क्वायर के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमें जानना है। तो जानने के लिए पहला क्वेश्चन दिया है कि AB और AD को एक्सिस मानना है, यानी AB को एक एक्स एक्सिस मानेंगे और AD को भी हम दूसरा एक्सिस मानेंगे। सपोज दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस. ओके, and A should be treated as origin since this is the point of start. We'll start from here. A is the common point here. Okay, these two lines are intersecting at A, so A must be the origin. So our coordinate A पे अगर आपको तो you have no movement at all along the x-axis as well as on y-axis.
तो इट्स कोऑर्डिनेट शुड बी 0 0। पहले भी आपको कहा जा चुका है कि जहां पे दोनों एक्सिस मीट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और वो ओरिजिन चूंकि पॉइंट ऑफ स्टार्ट होता है तो उसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 होता है। और इसने एक्स एक्सिस पे 2a डिस्टेंस कवर किया और y एक्सिस पे 0 डिस्टेंस कवर किया। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b मस्ट बी 2a and 0. And now we want to find out the coordinate of point C here, and the distance covered along x-axis is 2a, and the distance covered along y-axis is also 2a. Okay, and the coordinate of point D must be here. This is the y-axis, and no any movement along the x-axis. x-axis पे आप टोटली नहीं जा रहे हो b तक पहुंचने के लिए। दैट मीन्स x-axis पे इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा और y-axis पे 2a मूवमेंट करना पड़ेगा, तो 2a यूनिट हो गया x। अब सीसा यहाँ पे 0 और कोऑर्डिनेट 2a। Hence the coordinate of a, b, c and d have been found out. Okay. Here our second question says that taking the center of the square as origin and axis parallel to the sides AB, AB के पैरेलल एक्सेस होगा और AD के पैरेलल दूसरा एक्सेस होगा। फर्स्ट एक्सेस एक्स एक्सिस हमने माना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है थ्रू द हमने वो को कंसीडर किया है कि लेट वो बी द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। एंड तो इधर से एक्स एक्सिस क्रॉस किया और इधर से वाई एक्सिस क्रॉस किया। एज ए रिजल्ट द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी दिस लाइन सेगमेंट मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। हेंस पूरा साइड अगर 2a है तो हाफ साइड कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट c का a हो गया और सेकंड कोऑर्डिनेट दैट इज कोऑर्डिनेट b इसका a हो गया। अब आइए d का पॉइंट निकालते हैं। d में यहां से ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट यहां से चलेंगे, इधर एक a फाइनली फिर इधर a, तो इसका भी कोऑर्डिनेट -a। एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ y है। फिर यहां से a का पॉइंट निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो यहां से इधर नेगेटिव एंड इधर भी नेगेटिव, तो इसका भी कोऑर्डिनेट -a एंड -a। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब फाइनली b का जब हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव a यूनिट जाएगा और y एक्सिस में नेगेटिव जाएगा, यानी a -a। ओके, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप स्टडी कीजिए, उन क्वेश्चंस को बनाइए और एनसीईआरटी, एसचाम जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं बनाइए